وائرس کے خدشات، ملک بھر میں خوف و ہراس، قصور میں دفعہ 144 کی سرعام دھجیاں بکھیر دی گئیں، بازار بند کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود بازار بند کرائے جا سکے۔ شیخوپورہ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جان بحق ایک زخمی، واقعے کے بعد فرار ہونے والے ایک ڈاکو کو شہریوں نے پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ پتوکی میں پولیس کی سرپرستی میں منشیات فروشی کا کاروبار جاری، منشیات کے عادی افراد کھلے عام علاقے میں منشیات استعمال کرنے لگے، علاقہ مکین کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں خاوند کے تشدد سے تنگ آ کر خاتون کا اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج، پولیس سے شوہر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کہتی ہیں شوہر آئے دن مجھ پر تشدد کرتا ہے اور میری بیٹیوں کو مارتا ہے۔ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں، وہاڑی پولیس کے ناروا رویے پر ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء سراپا احتجاج، سیکیورٹی کے لیے تعینات پولیس اہلکاروں کو کچہری سے نکال دیا۔ ہارون آباد میں پولیس کی کارروائی، اشتہاری مجرم محمد رمضان کو حراست میں لے لیا، پولیس کے مطابق ملزم ڈکیتی، اقدام قتل اور دیگر جرائم میں ملوث ہے۔ سکھ کمیونٹی کے رہنما اور پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ کہتے ہیں پاکستان سکھوں کے لیے تاریخی اقدامات کر رہا ہے، بھارت حسب روایت سکھوں کو تقسیم کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، آزادی کشمیریوں اور بھارتی سکھوں کا حق ہے جو انہیں مل کر رہے گا۔ ننکانہ صاحب میں پولیو مہم کا آغاز، 3 روزہ مہم کے دوران 1 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، محکمہ صحت کی 472 ٹیمز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اور رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال میں زیر تعلیم نرسز کا چھٹیاں منسوخ کرنے کے خلاف احتجاج، نرسز کہتی ہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہمیں زبردستی ہاسٹل میں رکھا جا رہا ہے۔ شہ سرخیاں اپنے جانی شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے دفعہ 144 تو نافذ کر دی گئی، لیکن قصور میں دفعہ 144 کی سارے عام دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں کاشف سے۔ میاں کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 تو نافذ کر دی گئی ہے، لیکن قصور میں دفعہ 144 کی جو ہے وہ سرے عام دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ میں اس وقت یہاں پر پرانا لاری اڈا میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ ماڈل بازار میں منگل بازار لگایا گیا ہے، جہاں پر جو لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ خریداری کر رہی ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بھائی جان، کیا کہیں گے؟ پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، 4 لوگ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بازار جو لگایا گیا۔ السلام علیکم۔ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ادھر دیکھو بازار بھی بند ہیں اور شادیاں بھی بند ہیں اور سکول کالج بھی بند ہوئے ہیں، لیکن 4 آدمی جہاں کھڑے ہوں گے جہاں 5 آدمی کھڑے ہوں گے وہاں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، لیکن ادھر جمعہ بازار جو ہے ماڈرن بازار قصور شہر کا یہ اوپن ہوا ہے۔ ادھر دیکھو یہ کھلے عام قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ جی جیسے آپ شہری کی بات سنیے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے سرے عام جو ہے دفعہ 144 کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔
अब खबर मिंचनाबाद से। मिंचनाबाद में पंजाब हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर दफा 144 का नफाज किया, जिसके तहत तमाम इज्तिमात, शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन इंतजामिया की नाअहली और SHO इफ्तिखार नजीर की मिली भगत से शादी की तकरीबात जारी हैं। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आला हुकाम मुतालिका अफराद के खिलाफ एक्शन लें। अब खबर शेखुपुरा के हवाले से। शेखुपुरा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी हो गया। वाक़े के बाद फरार होने वाले एक डाकू को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको अपडेट करें, शेखुपुरा के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद ने शहरी गजम्फर और अरसल को लूटने की कोशिश की। दोनों अफराद की जानिब से मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी है, जिससे गजम्फर मौके पर ही जाम बहक हो गया। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, ये अफसोसनाक वाकया शेखपुरा के थाना हाउसिंग कॉलोनी में पेश है, जहां दौरान डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त अंसर जबकि जाँ बहक होने वाले अरसल के नाम से हुई। जख्मी नौजवान को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मैं ये आपको बताता चलूं कि दौरान डकैती एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जिसे शहरी ने दुर्गत बना के पुलिस के हवाले कर दिया। शेखपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने मसरूफ तफ्तीश और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर पत्तोकी के हवाले से। पत्तोकी में पुलिस की सरपरस्ती में मुनशियात फरोशी का कारोबार जारी है। मुनशियात के आदी अफराद खुले आम इलाके में मुनशियात इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। पत्तोकी के गिरदोनवा में आपको बताएं, मुनशियात फरोशी में मुलव्विस अफराद को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है, जबकि मुनशियात के आदी अफराद मुख्तलिफ इलाकों और खुले आम मुनशियात का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। अवाम का कहना है कि पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाले मुनशियात के अड्डे बंद नहीं किए गए तो हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। कोट अद्दू में खावंद के तशद्दुद से तंग आकर खातून ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करके पुलिस से शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कोट अद्दू के नवाई इलाके में घरेलू तनाज़े पर खावंद ने बीवी पर वहशियाना तशद्दुद किया, जिसके खिलाफ खातून ने अहले खाना के हमरा एहतजाज किया। इस मौके पर खातून का कहना था कि शौहर आए दिन मुझ पर तशद्दुद करता है और मेरी बेटियों को मारता है। हमारा मुतालबा है कि इसका आला हुकाम नोटिस लें और मेरे शौहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 9 साल थी गन मेरी शादी को, 4 साल थी मां प्रभु दे दर ते ही बैठियां। 9 साल जले थाए त शादी को 1 साल मो त ठीक रही है, बाकी मेरे तशद्दुद करेंदन मैं मरे ध्यान कोट मार के मैं अबू दे दर ते बिला वेंदन। भला हुन बिलागन 4 साल थी गन मेरे सही नहीं था, मेरे मालिक नहीं बने, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, मेरी बच्ची की शादी ठीक ही है, मार कुटाई करके मेरे घर भेज देने हूँ। जरा ना 4 साल थी न बच्ची मेरे घर दे विच है। ये छोटा बच्चा है, इंदे जरा ना पैदाइश मेरे घर दे विच थी, उन को वारिस भी नहीं थींदे। जिले भर में बढ़ती हुई चोरी, डकैती और आगजनी की वारदातों, रिहाड़ी पुलिस के नारवा रवैये और वकला के खिलाफ झूठी FIR के इंदराज पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। वकला ने सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस एहलकारों को कचहरी से निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला रिहाड़ी में बढ़ती हुई चोरी, डकैती और आगजनी की वारदातों, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बार के वकील इमरान हैदरी एडवोकेट के खिलाफ झूठे मुकदमे के इंदराज और पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने मुकम्मल हड़ताल करते हुए अदालतों का बायकॉट किया और सेशन कोर्ट के मरकजी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में जनरल सेक्रेटरी बार मियां फैसल एहसान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारी कचहरी में कोई वाकया होता है, पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 10 चैम्बरों में चोरियां हुई। इससे पहले भी होती रही हैं, हम इन पुलिस वालों को इतला देते हैं, पहली बार तो कोई आता नहीं है और जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके अलावा जब हम कोई वकील के साथ कोई वाकया हो जाता है, वो एप्लीकेशन देते
अब खबर हारूनाबाद से। हारूनाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके इश्तिहारी मुजरिम मोहम्मद रमजान को हिरासत में ले लिया है। एसएचओ थाना सदर मोहम्मद अफजल खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीपीओ कुद्दूस बेग की हिदायत पर पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिम मोहम्मद रमजान को हिरासत में लेकर इसके कब्जे से असलहा और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया। उनका कहना था कि इस वक्त पेशा वराना के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और डीपीओ कुद्दूस बेग की हिदायत पर अमल करते हुए जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस अपने फराइज मनसबी पूरी ईमानदारी और जांफशानी से सरअंजाम दे रही है। डीसीओ रेलवे लाहौर शीर हिना का कहना है कि रिजर्वेशन अमले के पास मौजूद प्रिंटर की खराबी को जल्द ठीक करवा रहे हैं, जबकि स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीसीओ रेलवे मैडम श्री हिना के ऑफिस में। इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि एक तो जो प्रिंटर्स के इश्यूज थे, दूसरा ये कि स्टाफ की कमी का इशू है, तो किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि पहले मुख्तलिफ डीएससीज वगैरह यहाँ पे और डीसीओज वगैरह रह चुके हैं, तो अब मैडम आई हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये बताइएगा कि एक जो मैंने इशूज आपको बताए, मुश्किलात ये आ रही हैं कि जो प्रिंटर है उसकी राइटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं लोगों को, टिकट्स के ऊपर मिसिंग है, और दूसरा ये कि कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो रिजर्वेशन अमला है उसकी कमी है, तो इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि प्रिंटर्स का जहाँ तक इशू है, हमने एक केस ऑलरेडी मूव किया हुआ है कि हमारे जितने पूरे डिवीज़न में ख़राब प्रिंटर्स थे उनकी हमने केस बनाकर आगे मूव कर दिया हुआ है। डीएस साहब ने अप्रूवल भी दे दी हुई है। उम्मीद है इस 2-4-5 दिन में इंशाल्लाह हमारे नए प्रिंटर्स और जो ख़राब वाले हैं उनको ठीक करने का जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा और नए प्रिंटर्स आ जाएंगे हमारे पास। दूसरी चीज़ जो आपने कही स्टाफ के हवाले से, कमर्शियल स्टाफ की जो शॉर्टेज थी उसको पूरा करने के लिए रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस में है। इस नेक्स्ट वीक या 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि कमर्शियल स्टाफ की मज़ीद रिक्रूटमेंट होगी, जिससे हमारी कमर्शियल जो नुकसान हो रहा है हमें हर स्टेशन पर फेस करना पड़ रहा है कि स्टाफ की शॉर्टेज है, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। रेवेन्यू के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि टेंडर्स वगैरह शुरू हो चुके हैं, कई लोग जो आपके पास आ भी रहे हैं, तो मज़ीद रेलवे को कितना आप जो आपके होते हुए कितना जो बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, कोशिश मैं कर रही हूँ कि कमर्शियली हम अपने सारे स्टेशंस को टैप कर सकें। कमर्शियल वायबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं फैसलाबाद स्टेशन पे, लाहौर स्टेशन पे। मैं और डीएस साहब हमारी ये कोशिश है कि हम जितने अच्छे ब्रांड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं अपने स्टेशंस पे, अच्छी क्वालिटी की फूड इंट्रोड्यूस कराएं। नए जो वेंडर्स आ रहे हैं उनकी जो पिछली पॉलिसीज़ हैं उसमें हम लोग कुछ चेंजेस, कुछ रेक्टिफिकेशंस वो कर रहे हैं। उसके अलावा पार्किंग स्टैंड्स हैं, उसके अलावा काफ़ी और एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इन लाइन और इन प्रोसेस है, तो उम्मीद है हमारे इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। बहुत शुक्रिया जी। मैम डीसीओ रेलवे जो है हमारे साथ मौजूद, इनका ये कहना था कि प्रिंटर्स की खराबी को भी देखा जा रहा है और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं उसको भी बेहतर करेंगे। स्टाफ के हवाले से इनका ये कहना था कि जैसा कि शेख रशीद साहब ने भी मुख्तलिफ मरतबा कहा है कि स्टाफ जो रेलवे का है उसको रखा जा रहा है। इसके अलावा इनका कहना था कमर्शियल के मामलात भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जी, डीसीओ रेलवे के साथ मौजूद थे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ सलमान लुकमान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से गुलाबी सुंडी के खात्मे के लिए आगाही मुहिम जारी है। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। कपास की बेहतर पैदावार और बेहतर क्वालिटी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलाबी सुंडी कपास को बहुत नुकसान पहुँचाती है, जिससे कपास की क्वालिटी और पैदावार मुतासर होती है। गुलाबी सुंडी कपास की बाकियात में छुपी रहती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत महकमा ज़राअत तौसीक़ की तरफ से कपास की बाकियात को फौरी तल्फ़ करने के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। खिलाफ वर्जी करने पर पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। मोहम्मद आमिर इकबाल महकमा ज़राअत तौसीक़ के ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला बहवलनगर में हारूनाबाद को मॉडल तहसील का दर्जा दिया गया है। हमारी 19 टीमें इस वक्त तहसील हारूनाबाद में काम कर रही हैं। हम गुलाबी सुंडी के खात्मा के लिए कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन को हमने ऑफ सीजन कैंपेन का नाम दिया है। ये मकसद ये है कि इस वक्त हम फार्मर को एजुकेट करें, किसानों को एजुकेट करें कि वो अपने ढेरों पे, घरों में, गलियों में, छतों पे जहाँ कहीं भी कपास की छड़ियाँ मौजूद हैं उनमें से खोखड़ी है, रुई है
और कच्चे टिंडे हैं और कचरा, इसको तलफ कर दें। किसानों को चाहिए कि वो इस मुहिम में महकमा ज़राअत का साथ दें और कपास की जो छड़ियाँ और बाकियात हैं इनको फौरन तल्फ करें ताकि गुलाबी सुंडी का खात्मा हो सके और काश्तकारों को गुलाबी सुंडी का खात्मा के लिए जहरीले स्प्रे कम से कम करने पड़े। मोहम्मद जमील अंजाम, मेट्रो 1 न्यूज़, हारूनाबाद। पुलिस लाइंस गुजरांवाला के ऑडिटोरियम हॉल में जिला भर के तफ्तीशी अफसरान की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला चौधरी हुमायूं इम्तियाज और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पुलिस लाइंस गुजरांवाला के ऑडिटोरियम हॉल में जिला भर के तफ्तीशी अफसरान की तरबीती वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला चौधरी हुमायूं इम्तियाज और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी ने खिताब करते हुए तफ्तीशी अमूर में आने वाले नकायस वाज़ेह करते हुए इनकी दुरुस्ती के बारे में तफसीलन बताया। ना एविडेंस को मुल्ज़िम से कनेक्ट किया होता है, ना वकूए से कनेक्ट किया होता है, ना एलिबाई का कोई जिक्र होता है। फिर ये कितने केसेस में मेरे पास लोग आते हैं कि जी हम अपने घर में बैठे थे, एक बंदा आके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमने रेजिस्ट किया, हमारा राइट ऑफ प्राइवेट सेल्फ डिफेंस एस्टैब्लिश होता है, कोई इस पर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि इससे पूरा पैराडाइम तब्दील हो जाता है। एक आदमी जिसको आप कातिल बना रहे हैं वो तो अपनी जान बचा रहा है। The fate of the case purely depends upon the fair, impartial and transparent investigation. तकरीब से तफसीर मलक प्रिंसिपल कायदे लॉ कॉलेज लाहौर और एडिशनल सेशन जज आशिक हुसैन ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। जनूबी पंजाब सूबा महाज के वाइस चेयरमैन और MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। जनूबी पंजाब सूबा महाज के वाइस चेयरमैन और MNA सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटरीट बनाने के फैसले से जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा होगा। इमरान खान ने कहा कि जनूबी पंजाब के नाम पर माजी में सियासत की गई जवाब नहीं होगी। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में होने वाली बारिशों और जालाबारी से किसान परेशान नजर आने लगे। किसानों का कहना है कि हमने बहुत सी रकम लगाकर गंदम की फसल काश्त की है, मगर बारिशों की वजह से गंदम की फसल खराब हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी से इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदुनवा में हालिया बारिश और ज़ालाबारी से किसान शदीद परेशान नजर आने लगे। किसानों का कहना है कि हमने बहुत मेहनत और बहुत से पैसे लगाकर गंदम की फसल की काश्त की है, मगर हालिया बारिश और ज़ालाबारी ने हमारी गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फसलों में पानी जमा हो गया है, जिसके बायस गंदम की फसल खराब होने लगी है। मजीद किसानों का कहना है कि हमारा सारा साल अपने घर और खानदान का दारोमदाद इस गंदम की फसल पर होता है। गंदम की फसल फरोख्त करके इससे हासिल होने वाली रकम से हम अपने घर के अखराजात और बच्चों की शादियां और बाकी तमाम जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, मगर इस दफा बारिशों की वजह से गंदम की फसल खराब होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि किसानों के लिए कोई ऐसे इकदाम करे ताकि किसान गंदम और चारे की फसल से होने वाले खसारे से बच सकें और इनके घर का निज़ाम जिंदगी भी चलता रहे और आइंदा भी खुशी खुशी गंदम की फसल काश्त कर सकें। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खानेवाल के इलाके पीरोवाल में कारोबार का झांसा देकर ताजिरों से गन पॉइंट पर नकदी छीनने वाला गैंग मुतहरिक हो गया। नौसरबाज गैंग कारोबार का झांसा देकर दर्जनों अफराद से करोड़ों रुपए लूट चुका है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नईम इकबाल अराई से। जी नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा। मैं लेके गया था वो मैंने जी बिल्कुल, खानेवाल के इलाके पीरोवाल के अंदर नौसरबाज गिरोह जो है वो मुतहरिक है। अरसा 10 साल से जो है नौसरबाज जो गैंग है मुख्तलिफ ताजरों से जो है हीले बहानों से जो है उनसे पेमेंटें छीन लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है उनको बहानों के साथ जो है उनको अपने झांसे में फंसाते हैं। तो इसी तरह से मियाँ वाली का कोयले का एक ताजर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि इस गिरोह ने जो है इसको लूटा है। गुज़श्ता 4 रोज़ कबल जो है इसके साथ वारदात की है। तो
تو مزید تفصیلات ہم انہی سے جان لیتے ہیں. تو بھائی بتائیے گا یہ کس قسم کی جو ہے انہوں نے واردات کی ہے, آپ کو کس طریقے سے خانیوال کے علاقے پیروال میں بلایا گیا ہے, تو آپ کیسے یہاں پر پہنچے اور کیا کیا لوٹا ہے اور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ بھائی جان میں میوالی کا رہائشی ہوں, میں کولے کا کاروبار کرتا ہوں. عباس اور اجمل کا میرے ساتھ فون پہ رابطہ تھا کولے کے سلسلے میں. 10 تاریخ کو میرا ان سے رابطہ ہوا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں فیصل آباد میں پیمنٹ لینے آیا ہوں, میں آپ کے پاس سیمپل لے آؤں گا. میں یہاں آیا خانیوال میں, انہوں نے مجھے پہلے خانیوال بتایا تھا, اس کے بعد پیروال بھی آ جاؤ. پیروال میں چلا گیا, وہاں سے یہ مجھے بٹھا کے لے گئے, بٹھایا اور کولے کے سلسلے میں ڈیل کی. جب ڈیل ہو گئی, جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے نہ مجھے پکڑ لیا اور پستل دکھا کے نہ زبردستی میرے سے جتنی بھی اماؤنٹ تھی وہ چھین لی. اس کے بعد نہ انہوں نے مجھے مارا, تھپڑ بھی مارے اور یہ پستل دکھا کے مجھے بھگا دیا. میں نے 15 پہ کال کی لیکن پولیس میرے پاس 2 گھنٹے کے بعد پہنچی. اس کے باوجود بھی پولیس پارٹی مین روڈ سے نیچے نہیں اتری اور مجھے کہا کہ آپ صبح تھانے آ جائیں. میں صبح جب تھانے گیا تو FIR جو درخواست میں لے کے گیا تھا وہ SHO صاحب نے جب پڑھی تو میرے منہ پہ مار دی کہ ان کے پاس تو گن ہے بھی نہیں, آپ نے گن پوائنٹ کیوں لکھا ہے. ابھی تک پولیس کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کر رہی اور پولیس الٹا ہمیں بھی دھمکیاں دے رہی ہے اور وہ پارٹی بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے. لہٰذا ہماری IG پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمارے پیسے ریکور کیے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ تقریباً 20 سے زائد مقدمات کے اندر جو کہ ڈکیٹی کی FIR ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ درج ہیں, لیکن تھانہ صدر کی پولیس جو ہے ان ملزمان تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ چند روز قبل رحیم یار خان کا ایک تاجر تھا جس کا نام طاہر عباس بتایا جا رہا ہے, تو وہ بھی اسی طرح سے اس گینگ سے جو ہے وہ لٹ چکا تھا. کہنا ہے کہ ہم اس DPO سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس گینگ کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے اور جو پولیس کے اہلکار اس معاملے کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور قانونی کارروائی کی جائے. جی بہت شکریہ نعیم اقبال آرائیں, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں سکھ کمیونٹی کے رہنما اور پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ پاکستان سکھوں کے لیے تاریخی اقدامات کر رہا ہے, جبکہ بھارت حسب روایت سکھوں کو تقسیم کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. آزادی کشمیریوں اور بھارتی سکھوں کا حق ہے جو انہیں مل کر رہے گا. گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں منعقدہ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار گوپال سنگھ چاولہ نے کہا کہ آج دنیا بھر میں مقیم سکھوں کے لیے خوشی کا مقام ہے. سکھ قوم کا حق ہے کہ وہ نانک شاہی کیلنڈر کے مطابق اپنے مذہبی تہوار منائے. بھارت جان بوجھ کر نانک شاہی کیلنڈر کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نام سکھ مذہب کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا, جنہیں کرتارپور راہداری کھول کر سکھوں کا 72 سالہ خواب پورا کر دیا. سب سے کم تعلیم ہماری باقی جتھے بندیاں سب کا میں بہت مشکور ہوں, اور میں ایک پیغام آج انڈیا کو دینا چاہتا ہوں شرعام کہ RSS والوں, شیو سینا والوں, راو والوں, تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے 10 لوگ اگر ہمارے لیڈروں میں خرید لی ہیں تو پوری قوم کو نہیں خرید سکتے. گرو نانک کا نام جو ہے یہ زندہ تھا, یہ زندہ ہے اور یہ زندہ رہے گا. یہ نہیں کہ صرف ہم پاکستانی, پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ سکھ قوم ہے, سکھ قوم ایک زندہ قوم ہے. سکھ قوم ظلم کے خلاف لڑنے والی قوم ہے, اور آج ہم یہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی ظلم ہے, جو دلی میں ہو رہا ہے وہ بھی ظلم ہے, اور ہم اس کے اگینسٹ ہیں. اور ہم جتنے بھی خالستانی ہیں, ہم جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ہم آزادی پسند ہیں, آزادی کو. ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا. ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے ضلع بھر میں شروع ہونے والی 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز DHQ اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا. 3 روزہ پولیو مہم کے دوران تحصیل ننکانہ میں 1 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے, جس کے لیے محکمہ صحت نے 472 ٹیمز تشکیل دے دی ہیں. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ ضلع بھر میں 3 روزہ پولیو مہم کی نگرانی خود کر رہا ہوں. ضلع بھر کو پولیو فری ڈسٹرکٹ بنانا ہی میری اولین ترجیح ہے.
शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।